حضرت ابراہیم ایک دفعہ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ سے گزر ہوا۔ وہاں کا بادشاہ عورتوں کا دل دادا تھا۔ اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ ابراہیم کی بیوی کو رات کو میرے پاس لانا، کیونکہ میں اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنے سارے خوبصورت اور مالدار نوجوانوں کے درمیان ایک اجنبی مسافر کے سامنے راجکماری کیوں رک گئی؟ راجکماری سائرہ خاتون نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، اے اجنبی مسافر، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں ابراہیم ہوں، اللہ کا بندہ اور اللہ کے دین کا پھیلانے والا ہوں۔ نہ میں کسی بادشاہ کا بیٹا ہوں، نہ مال و دولت کا مالک ہوں، بلکہ میں تو صرف اپنے رب کی بندگی کرنے والا ایک مسافر ہوں۔ یہ سن کر سب لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ اے راجکماری، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو ایک عام مسافر ہے، نہ اس کے پاس دولت ہے، نہ شہرت، نہ کوئی فوج، پھر تم نے اسی کو کیوں پسند کیا؟ مگر سائرہ خاتون نے پر اعتماد لہجے میں کہا، تم سب نہیں جانتے، میں نے جس کے ماتھے پر نور دیکھا ہے وہ عام آدمی نہیں ہے، اس کے چہرے پر ایک اور ایسا نور چمک رہا ہے جو دنیا کے کسی ہیرے موتی سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ وہی نور ہے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو روشنی بخشے گا۔ میں اسی نور والے کو اپنا شریک حیات بنانا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا قیمتی تاج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کو اپنا شوہر چن لیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ درباری اور ساری رعایا حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی، تو نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تیرے اختیار میں ہے، لیکن جان لے یہ آدمی ہمارے خاندان کے رواج کے مطابق کوئی رائل خون نہیں رکھتا۔ مگر سائرہ خاتون نے کہا، ابا جان، یہ سچ ہے کہ یہ بادشاہ نہیں، مگر یہ بادشاہوں کے بادشاہ کے بندے ہیں اور میں دنیا کے تخت تاج سے زیادہ ان کی دینداری کو پسند کرتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے اجنبی شخص، اگر میری بیٹی نے تمہیں چن لیا ہے تو میں اس کی خوشی میں راضی ہوں۔ یوں سائرہ خاتون کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا۔ شادی کے بعد جب وہ دونوں محل سے باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم، ہم نے سائرہ خاتون کو تمہارے لیے ایک عظیم نعمت بنا دیا ہے۔ اس عورت کی نسل سے ہم تمہیں ایک نبی عطا کریں گے جو دنیا میں رحمت بن کر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو ساتھ لے کر اللہ کے حکم سے شام کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر وہ دونوں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اس نے انہیں ایک دوسرے کے لیے پسند کیا۔ یہ نکاح صرف ایک عام شادی نہیں تھی بلکہ ایک مقدس ملاپ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر طے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کی جوڑی دیکھ کر فرشتے بھی ندا دینے لگے کہ یہ وہ جوڑا ہے جس سے نسلوں میں انبیاء پیدا ہوں گے۔ اس رات پورا محل چراغوں سے جگمگا رہا تھا۔ لوگ خوشی سے ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا رہے تھے اور ہر زبان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیکی، خوبصورتی اور نورانی چہرے کی تعریف ہو رہی تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے انہیں ایک ایسی پاک باز عورت عطا فرمائی جو دنیاوی مال و دولت کے بجائے ایمان اور نور کو پہچانتی ہے۔ شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سائرہ خاتون سے فرمایا، اے سائرہ، یہ سب کچھ عارضی ہے، اصل عزت تو اللہ کی بندگی میں ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں محلوں اور زیورات کے بجائے ایک سادہ مگر بابرکت زندگی دے سکتا ہوں۔ سائرہ خاتون نے عاجزی سے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے دنیا کے زیورات نہیں چاہیے، مجھے وہ زندگی چاہیے جس میں اللہ کی رضا ہو۔ آپ کے ساتھ رہ کر مجھے دنیا کی ہر نعمت مل گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ساتھ لے کر بادشاہ سے اجازت لی اور اللہ کے حکم سے کنعان کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر وہ دونوں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ ان کے چہروں پر ایسا نور تھا کہ راہ چلتے لوگ حیران ہو جاتے۔ جب وہ کسی بستی میں ٹھہرتے تو وہاں کے لوگ انہیں دیکھ کر ایمان لے آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں جہاں قیام کیا وہاں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ سائرہ خاتون ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔
वो उनके लिए खाना बनाती, मेहमानों की खिदमत करती और रातों को इबादत में वक्त गुजारती थी। अल्लाह ताला ने उन दोनों के दिलों में ऐसी मोहब्बत डाल दी कि वो एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते थे। कुछ सालों बाद अल्लाह ने उन्हें एक और आजमाइश में डाला, जब सायरा खातून की खिदमत गुजार हाजरा के जरिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। मगर सायरा ने कभी हसद नहीं किया, बल्कि अल्लाह के फैसले पर राजी रही। उनकी पाकीज़गी और सब्र की मिसाल कयामत तक के लिए छोड़ दी गई। अल्लाह ताला ने उन दोनों के जरिए नस्ल अंबिया कायम की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। यूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के माथे पर जो नूर सायरा ने देखा था, वही नूर बाद में नबी रहमत के चेहरे की जीनत बना। जब सब थम गया तो राजा के हुक्म से एक मुसलमान आलिम को बुलाया गया और उनके हाथों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी सायरा का निकाह अदा हुआ। क्या ही शानदार महफिल थी वो। हर तरफ खुशबू थी, रोशनी थी, दुआओं की गूंज थी। निकाह के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम राजकुमारी सायरा के शौहर बनकर पूरे राज्य में इज्जत और वकार के मालिक बन गए। हर वक्त उनके इर्द गिर्द नौकर, चाहकर, गुलाम और दासियां हाजिर रहती, उनके हुक्म के इंतजार में रहती। कुछ साल इसी शानो शौकत, सकून और राहत में गुजर गए। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, आपके रब का हुक्म है कि आप सीरिया यानी शाम की तरफ हिजरत करें। ये सुनते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल बेकरार हो उठा। उनके अंदर नबूवत का जज्बा जोश मारने लगा। उन्होंने फौरन अपने सुसर राजा साहब के पास जाकर कहा, ए बादशाह, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूं। मुझे ये दुनियावी आराम और ऐश नहीं चाहिए। मेरा मकसद है भटके हुए लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखाना। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहां से निकलकर सीरिया की तरफ हिजरत करूं। राजा ने ये बात सुनकर खुशी से मुस्कुराकर कहा, ए इब्राहीम, जाओ, मेरा दिल कहता है तुम सच्चे हो, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। फिर राजा ने रुखसत की इजाजत दी और बरकत की दुआएं दी। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा मुहतरमा सायरा और 2 पहरेदारों को साथ लेकर सफर पर रवाना हुए। वो बस्ती दर बस्ती, शहर दर शहर सफर करते गए, यहां तक कि एक दिन और एक रात के सफर के बाद वो मिस्र की सरहद पर पहुंच गए। वहां चंद लोगों से मुलाकात हुई, जिन्होंने घबरा कर कहा, ए अजनबियों, तुम कहां जा रहे हो? क्या तुम्हें खबर नहीं कि मिस्र का बादशाह निहायत जालिम और बदकार है? वो जब भी किसी खूबसूरत औरत को देखता है तो उसे जबरदस्ती अपने महल में ले जाता है। अगर उसे तुम्हारी बीवी सायरा की खबर हो गई तो वो तुम्हें कत्ल कर देगा और तुम्हारी बीवी को कैद कर लेगा। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चेहरा संजीदा हो गया, मगर उनके दिल में अल्लाह पर मुकम्मल यकीन था। उन्होंने दिल ही दिल में दुआ की, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा मुहाफिज है, तू ही मेरी इज्जत और मेरी बीवी की इज्जत का निगहबान है। वो रास्ते रास्ते अपने सिपाही बिठा रखता है ताकि जो भी मालो दौलत लेकर गुजरे उससे जबरदस्ती छीन लिया जाए, और अगर कोई खूबसूरत औरत दिख जाए तो उसे पकड़कर महल में ले जाया जाता है, जहां बादशाह इसका अपमान करता है। इसलिए आप लोग मिस्र में मत जाइए, अपना रास्ता बदल लीजिए। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत फिक्रमंद हो गए, सर झुका लिया और अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगे, ऐ मेरे रब, अब मैं क्या करूं? तभी वही आई, ऐ इब्राहीम, मेरे हुक्म से मिस्र का रास्ता इख्तियार करो, सीरिया जाने का यही रास्ता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सुना और कामिल भरोसे के साथ मिस्र की तरफ रवाना हो गए। कुछ फासला तय करने के बाद उन्होंने एक तदबीर सोची, क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका था कि मिस्र का बादशाह बदनीयत और उसके सिपाही लटेरे हैं। उन्होंने अपनी बीवी सायरा को एक लकड़ी के संदूक में बिठाया और वो संदूक अपने सर पर रखकर चलने लगे। रास्ते में कुछ आगे बढ़े ही थे कि अचानक चंद पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, रुक जाओ, तुम्हारे पास जो कुछ है सब हमारे हवाले करो, और ये बक्सा, इसमें क्या है, हमें फौरन दिखाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी से कहा, मेरे पास जितनी भी दौलत है सब ले लो,
मगर इस बक्से को मत खोलो। लेकिन जालिम पहरेदारों ने उनकी बात की जरा भी परवाह न की। उन्होंने जबरदस्ती बक्सा छीन लिया और ताकत से इसका ढक्कन खोल दिया। जैसे ही बक्सा खुला, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर बैठी थी एक नूरानी चेहरे वाली नूर हसन की पैकर पाकीज़ा खातून, बीबी सायरा। उनका हुस्न देखकर हर पहरेदार की सांस रुक गई। कुछ लम्हों के लिए पूरा मजमा साकित हो गया। फिर यकायक एक शोर उठा। हर सिपाही दूसरे से कहने लगा, ये औरत तो बादशाह के लायक है, मैं उसे महल में पेश करूंगा ताकि मुझे इनाम मिले। हर एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मिस्र के बादशाह का हुक्म था कि जो कोई उसे खुश करेगा उसे सोना, चांदी और बेशुमार दौलत इनाम में दी जाएगी। जैसे ही राजा ने बीबी सायरा को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, फौरन ही उसका हाथ शल हो गया। वो चीख पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। उसका पूरा जिस्म कांपने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बीबी सायरा घबरा गईं, लेकिन फौरन समझ गईं कि ये अल्लाह की कुदरत का मजहर है। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर ये शख्स नेक नियति से मेरी तरफ आ रहा है तो उसे सलामत रख, लेकिन अगर बदनियति से आ रहा है तो उसे सजा दे और मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। दुआ खत्म होते ही बादशाह के जिस्म में मजीद दर्द बढ़ गया। वो रोने लगा और कहने लगा, ए औरत, अपने रब से दुआ करो कि मुझे इस अजाब से निजात दे, मैं तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। बीबी सायरा ने दोबारा अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर ये सच कह रहा है तो उस पर से मुसीबत हटा दे। जैसे ही उन्होंने दुआ की, बादशाह का जिस्म ठीक हो गया। वो उठ बैठा, मगर फिर शैतान ने उसे बहकाया कि इतनी हसीन औरत को हाथ लगाए बगैर कैसे छोड़ दो। वो दोबारा आगे बढ़ा और जैसे ही सायरा के करीब आया, उसका जिस्म फिर से अकड़ गया। जुबान बंद हो गई और आंखें ऊपर की तरफ पलट गईं। वो तड़प तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा। बीबी सायरा ने फिर दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर ये दोबारा बदनीयती से आया है तो इसे खुद इसके हाल पर छोड़ दे, ताकि उसे तेरे इंसाफ का यकीन हो जाए। अब के बार बादशाह बुरी तरह चीखने लगा। उसके मुहाफिज दौड़कर आए तो देखा कि बादशाह जमीन पर तड़प रहा है। वो कह रहा था, उस औरत के पास जाओ और उससे कहो कि मेरे लिए दुआ करे, वरना मैं अभी मर जाऊंगा। मुहाफिजों ने बीबी सायरा से कहा, महाराज मरने वाले हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। बीबी सायरा ने कहा, अगर वो सच में तौबा कर ले कि आइंदा किसी पाक औरत को हाथ नहीं लगाएगा तो मैं दुआ करूंगी। मुहाफिजों ने वही बात बादशाह को बताई तो वो रोते हुए बोला, हाँ, मैं वादा करता हूं कि कभी किसी औरत को जबरदस्ती नहीं छूंगा। बीबी सायरा ने हाथ उठाकर दुआ की तो बादशाह का जिस्म ठीक हो गया। वो फौरन सजदे में गिर गया और कहने लगा, तेरे रब के सिवा कोई ताकत वाला नहीं। फिर वो बीबी सायरा के कदमों पर गिर पड़ा और बोला, ए पाक औरत, अपने रब से कहो कि मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूं और इज्जत के साथ तुम्हें वापस तुम्हारे शौहर के पास भेज दूंगा। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इज्जत के साथ महल में बुलाया जाए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो बादशाह उनके सामने झुक गया और बोला, तुम्हारी बीवी वाकई पाकबाज और तुम्हारा रब सच्चा रब है, मैं उससे डरता हूं। उसने बीबी सायरा को सोना, चांदी, जवाहरात और एक कनीज हाजरा अता की और कहा, इन्हें ले जाओ और मेरे मुल्क से निकल जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी सायरा वहां से निकल गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उनकी इज्जत और ईमान दोनों की हिफाजत फरमाई। लेकिन इसी पल अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। राजा के दोनों हाथ सुन्न हो गए। वो कांपने लगा, पीछे हट गया, चेहरे पर खौफ और दर्द साफ झलकने लगा। वो बोला, ए पाक औरत, मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम करो, मैं तौबा करता हूं, कभी तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। राजा की दर्द भरी हालत देखकर सायरा के दिल में रहम आया। उसने हाथ उठाए और रोते हुए अर्ज की, ए अल्लाह, तू उस राजा को हिदायत दे और उसे पूरी तरह शिफा अता फरमा। सायरा की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने फौरन राजा के हाथ ठीक कर दिए। राजा देर तक सायरा को देखता रहा, फिर अचानक जोश में आकर सायरा के करीब आने लगा। वो उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, मगर जैसे ही वो सायरा के पास पहुंचा, अल्लाह ताला का गजब उस पर नाजिल हुआ। उसके दोनों पांव जमीन में घुटनों तक धंस गए। राजा डर से कांप उठा। वो चीखने लगा, सायरा, मुझे बचा लो। सायरा ने सख्त लहजे में कहा,
अल्लाह के साथ मजाक करने की सजा उससे भी ज्यादा भयानक हो सकती थी। मैं तुम्हारे लिए दूसरी बार दुआ नहीं कर सकती। मेरे शौहर एक नबी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो सामने बैठक में है, जाओ उनसे माफी मांगो। मैंने एक बार तुम्हारे लिए दुआ की थी, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुमने फिर वही गुनाह किया, मेरी तरफ बुरी नजर डाली। अब अगर मेरे शौहर तुम्हें माफ कर दे तो शायद अल्लाह भी तुम्हें माफ कर दे। बेबस राजा ने हुक्म दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंदर लाओ। नौकर दौड़े और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाजिर किया। जब सब ने राजा की हालत देखी तो कोई हंसने लगा, कोई हैरान रह गया। लोगों की हंसी देखकर राजा टूट गया, आंसू बहाने लगा और हजरत इब्राहीम की तरफ देखते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैंने आपकी बीवी को नहीं पहचाना, इसीलिए गुनाह कर बैठा। खुदा की कसम, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे माफ कर दे और मुझे फिर से ठीक कर दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया और दिल से दुआ की, या अल्लाह, इसे हिदायत दे और अपनी रहमत से शिफा अता फरमा। दुआ खत्म हुई और सबकी आंखों के सामने एक मोजा हुआ। राजा के पांव जमीन से बाहर आ गए। वो फौरन सजदे में गिर गया और रोते हुए बोला, इब्राहीम के रब के सिवा कोई माबूद नहीं, वही सबसे बड़ा ताकतवर है। राजा का जिस्म बिल्कुल ठीक हो गया, जो हिस्सा जमीन में धंस गया था वो बाहर निकल आया। अब वो रोते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर पड़ा और बोला, जनाब, मैंने आपकी बीवी के साथ जो बदतमीजी की उसकी सजा आप मुझे दे दीजिए, मगर मुझे तौबा का मौका दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अब जिंदगी में कभी गुनाह नहीं करूंगा। राजा जोर जोर से रोने लगा, उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रहमत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, 2 रकात नमाज अदा की और दिल से दुआ की, या रहमान या रहीम, उस बंदे को माफ फरमा दे। और इसी पल राजा का दिल तौबा से भर गया, उसकी आंखों में आंसू थे। वो सायरा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मोजज़े को देखकर हैरान रह गया। वो सोच में पड़ गया कि ये दोनों कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं। इसलिए उसने दोनों को शाही महल के सबसे ऊंचे और इज्जत वाले मकाम पर जगह दे दी। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरबार में एक मुअज्जज मुशीर के तौर पर रहने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर इस बादशाह को इस्लाम की तालीम दी जाए तो उसके जरिए पूरे मिस्र में अल्लाह का पैगाम फैले सकता है। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाजत मांगी कि कुछ वक्त के लिए वहीं कयाम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमा ली। फिर वो मिस्र के शाही महल में कुछ दिन और रहे। बादशाह को सल्तनत के अहम मामलात पर नसीहतें देने लगे। उन्होंने कहा, ए बादशाह, अपने मुल्क से जुल्म, नाइंसाफी, बदउनवानी और इग़वा जैसी बुराइयां खत्म कर दो। अल्लाह के कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलाओ। बादशाह उनके इल्म, ईमान और किरदार से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया और इस्लाम कबूल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता पूरे मिस्र में लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल करने लगे। ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं गूंज उठे और मिस्र ईमानो हिदायत की रोशनी से जगमगा उठा। फिर एक दिन जब मिस्र में इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बादशाह से मिलने के लिए तशरीफ लाए। उन्होंने नर्म लहजे में कहा, ए बादशाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि अब मुझे रवाना होना है। अगर आप इजाजत दें तो मैं शाम सीरिया की तरफ सफर करना चाहता हूं। बादशाह ये सुनकर उदास हो गया और बोला, ए अल्लाह के नबी, मैं आपकी रहमत, आपकी नसीहत और आपकी भलाई कभी नहीं भूल सकता। आपके जाने से मेरा दिल खाली हो जाएगा, मगर मैं जानता हूं कि नबी का हर कदम अल्लाह के हुक्म से होता है। इसने कहा, मैं चाहता हूं कि आपके लिए एक तोहफा पेश करूं ताकि मेरी तरफ से अकीदत की निशानी हमेशा आपके साथ रहे। फिर उसने अपने खास खादमों को हुक्म दिया, हाजरा को महल में लाओ। कुछ ही देर बाद बीबी हाजरा को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी सायरा के सामने पेश किया गया। बादशाह ने अदब से कहा, ए अल्लाह के नबी, आपने मुझ पर जो रहमत और हिदायत की है, इसके शुक्राने के तौर पर मैं ये पाक दामन नेक सीरत औरत आपको तोहफे में पेश करता हूं। प्यारे दर्शकों, ये वही हाजरा है जो आगे चलकर
اسلام کی تاریخ کی ایک برگزیدہ اور مقدس خاتون بنی جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جن کی یاد میں آج بھی صفا و مروہ کی سعی ادا کی جاتی ہے اور جن کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ پھوٹا، یہی وہ مقدس خاتون ہے جن کی نسل سے بعد میں ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اصل میں بی بی حاضرہ کوئی عام داسی نہیں تھی، وہ ایک شریف اعلیٰ خاندان کی باعزت عورت تھیں، لیکن اس وقت کے حالات میں جب ان کے قبیلے کو جنگ میں شکست ہوئی تو وہ قیدی بن کر بادشاہ مصر کے قبضے میں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہی عورت آگے چل کر ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں بنی، یوں وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ ایمان میں امر ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاضرہ کو بطور تحفہ قبول فرمایا اور پھر بادشاہ سے کہا، اے عظیم بادشاہ، چونکہ اب میں مصر چھوڑ کر شام سیریا کی طرف روانہ ہونے والا ہوں، میری تمنا ہے کہ میں یہاں سے ایمان، سکون اور دعا کے ساتھ رخصت ہوں۔ میرے دل چاہتا ہے کہ روانہ ہونے سے پہلے میں اس ملک کے لوگوں کو کچھ آخری نصیحت دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے یہ بات سنی اور فوراً پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ ایک خاص دن تمام لوگ، خاص طور پر رئیس، امیر اور بڑے بڑے افسر ایک عظیم میدان میں جمع ہوں جہاں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام ان سے خطاب کریں گے۔ پھر وہ دن آ پہنچا، پورا مصر اس میدان میں سمٹ آیا، ہر طرف خاموشی، سناٹا اور ایک روحانی فضا چھائی ہوئی تھی۔ لوگ اپنی سانسیں روکے بیٹھے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منچ پر تشریف لائے تو ایک لمحے کو پورا مجمع خاموش ہو گیا، بس دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور نہایت جلال و محبت کے ساتھ فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ظلم، ناانصافی، غرور اور لالچ سے بچو، کیونکہ یہی چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، دولت، طاقت اور حکومت سب عارضی ہے، اصل بادشاہت صرف اللہ کی ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے اور وہی لینے والا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو ایک دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اس لیے نیکی پر قائم رہو اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ ان کی آواز میں ایسا اثر تھا کہ میدان میں بیٹھے ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل کانپ اٹھے، ہر زبان سے ایک ہی صدا بلند ہوئی، ہم وعدہ کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم زندگی بھر اسلام کے راستے پر قائم رہیں گے، ہم کبھی ظلم نہیں کریں گے اور ہمیشہ انصاف سے پیش آئیں گے۔ جب یہ روحانی مجلس ختم ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدے میں جھک کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے میرے رب، تو نے اپنی رحمت سے ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے بادشاہ کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہوئے، ان کے چہرے پر سکون، آنکھوں میں نور اور دل میں شکر کا سمندر موجزن تھا۔ اگلے ہی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ اور تمام اہل مصر سے وداع لینے کی تیاری کی۔ پورے محل میں سناٹا چھا گیا تھا، ہر چہرہ اداس تھا، ہر نظر میں محبت، عقیدت اور احترام جھلک رہا تھا، کیونکہ وہ جا رہے تھے اللہ کے نبی جنہوں نے مصر کو اندھکار سے نکال کر ایمان کی روشنی سے منور کر دیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے روانگی کی تیاری مکمل کی تو بادشاہ نے ان کے لیے قیمتی تحفے تیار کروائے، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اور بہت سے جانور بطور الوداع پیش کیے گئے۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو ہزاروں لوگ شہر کے دروازے پر جمع تھے، سب کے دلوں میں دکھ تھا کہ وہ نبی جا رہے ہیں جنہوں نے ان کے دلوں کو ایمان سے روشن کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہوئے، ان کے ساتھ بی بی سائرہ اور بی بی حاضرہ تھی۔ راستے میں جب قافلہ رکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے رب العالمین، اس زمین کو بابرکت بنا دے جہاں میں اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب وہ کنعان کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی توحید کا پیغام سنایا، لوگوں سے کہا کہ تم ان پتھروں سے کیا مانگتے ہو جو خود اپنے آپ کو بھی نقصان سے نہیں بچا سکتے۔ ایک دن وہ ایک بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں جا کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔
सिर्फ एक बड़ा बुत बाकी रहने दिया ताकि लोग खुद सोचे। जब कौम के लोगों ने देखा तो गुस्से में आ गए और कहने लगे, हमारे माबूदों को किसने तोड़ा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा, इन बड़े बुत से पूछो, शायद उसी ने बाकियों को तोड़ा हो। लोग शर्मिंदा हुए मगर उनके दिलों पर कुफ्र का पर्दा था। कहने लगे, इसको आग में जला दो ताकि इबरत हो। फिर एक बहुत बड़ी आग जलाई गई, इतनी बड़ी कि परिंदे उसके ऊपर से नहीं गुजर सकते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर आग के दहकते शौलों में फेंक दिया गया, मगर अल्लाह ताला ने अपने खलील को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा। आग ठंडी हो गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें से सही सलामत बाहर आ गए। लोग हैरान रह गए कि चेहरे पर नूर था, जिस्म पर कोई जख्म न था। ये मंजर देखकर कुछ लोग ईमान ले आए, मगर अक्सर ने फिर भी इनकार किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराही में छोड़ दे। कुछ दिनों बाद वो इस जगह से निकले और अल्लाह के हुक्म से बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक छोटा सा इबादत खाना बनाया जहां वो इबादत करते थे। एक रात ख्वाब में उन्हें हुक्म हुआ कि अपनी बीवी हाजरा और शेरखार बच्चे इस्माइल को एक बंजर वादी में ले जाओ। उन्होंने फौरन इताअत की और मक्का की वादी में जाकर उन्हें वहां छोड़ दिया। जब वो वापस जाने लगे तो बीबी हाजरा ने अर्ज किया, ए इब्राहिम, आप हमें यहां किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूं, वही हमारा मुहाफिज है। हाजरा खामोश हो गईं, क्योंकि वो जानती थीं कि अल्लाह पर भरोसा करने वाले कभी तन्हा नहीं रहते। कुछ दिनों बाद जब पानी खत्म हो गया तो उन्होंने सफा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाई, अपने बच्चे के लिए पानी तलाश करने लगी। 7 बार दौड़ने के बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्माइल के कदमों के नीचे से पानी का चश्मा फूट पड़ा, जिसे आज हम जमजम के नाम से जानते हैं। ये वो लम्हा था जब अल्लाह की रहमत ने एक वीरान वादी को हयात बख्श दी और इसी जगह बाद में अल्लाह के घर काबा की बुनियाद रखी गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब दोबारा वहां आए तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने बेटे के साथ मिलकर मेरा घर तामीर करो। उन्होंने फरमाया, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, और इसी दुआ के साथ बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हुई और हज का सिलसिला शुरू हुआ। ये वही इब्राहीम हैं जिन्होंने अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हत्ता कि जब उन्हें ख्वाब में अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म मिला तो उन्होंने बगैर तरद्दुद के कहा, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बाह कर रहा हूं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए अब्बा जान, जो हुक्म दिया गया है वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब वो अपने बेटे को पेशानी के बल लिटाने लगे तो अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। हमने तुम्हारे बेटे के बदले एक अजीम कुर्बानी भेज दी। यह कुर्बानी एक मेंढा था जो जन्नत से आया था और यही कुर्बानी की सुन्नत आज तक जारी है। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैले, इसी नेक मकसद से वीडियो को शेयर भी जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।